Hello and welcome to the Edu Leaders Show on the Edu Bulletin, where we bring you the latest insights and trends from the world of education. I'm Jessica, and I'm excited to guide you through this episode. We have an esteemed guest joining us, Mr. Rahul Kesarwani, Director of Meerut City Public School and President of the Meerut Sahodaya Schools Complex. What does he have to say about NEP 2020 and the two-board examination system? Do these reforms need more time and clearer communication to avoid confusion among students, parents, and teachers? Now, let's move directly into our interview. Over to you, Sakshi. Let's hear what Sir had to say. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Edu Leaders Show. This is me, Sakshi Shukla, and with me we have a very special guest with us, Mr. Rahul Kesarwani, Director of Meerut City Public School and President of Meerut Sahodaya Schools Complex. So, welcome to the show. Thank you. सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो एग्जीबिशन रही आज आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आपको सीबीएसई सेक्रेटरी जो हैं उनका स्पेशल सेशन अटेंड आपने किया, क्या क्या उसके मेजर पॉइंट रहे एंड ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ दैट दिस एग्जीबिशन हैज़ बीन कंडक्टेड इन केएल इंटरनेशनल स्कूल. मैं पर्सनली साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ एंड आई हैव मेड लाइव प्रोजेक्ट्स व्हेन आई वाज इन क्लास 12th 11th and I made 21 live projects in one single day. So I am more inclined towards that students should be participated in practical experimenting of the things what they are theoretically learning in the classroom. So this is a wonderful thing. Second thing, what we have learned from today's session, takeaways from today's session of Himanshu Gupta sir, that first of all, implementation of practical knowledge is necessary, that is one thing. Sir has also given certain reforms which are going to come in affiliation. For example, the schools which are going to be newly affiliated to CBSE, at present in the cities where the population is more than 20 lakh, the minimum land requirement is 4,000 meters. Sir has told that it is about to be reduced to 3,200 square meters. Okay. Now this will make more schools to get affiliation from CBSE and large number of more students will be able to study in a English medium CBSE affiliated schools. So this is going to be one of the most important reform which is going to happen in coming few months. Right. So that is going to be wonderful. Yes. Well. That's great, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे दिस इज़ वन स्टेप कि उन्होंने रिड्यूस करा है सो मोर स्कूल्स कैन बी एफिलेटेड, ऐसे बहुत सारे ही NEP 2020 के अंडर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं. कितना इम्पैक्टफुल आपको लगते हैं कि सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ग्राउंड लेवल पे उनका कितना इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी बहुत बड़े रिफॉर्म्स होते हैं पूरे देश में, जो कि वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे नेशन वाइड स्प्रेड होते हैं और इससे लगभग इंडिया में 35 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट 1 महीने 2 महीने 6 महीने में नहीं आता है. इस इम्पैक्ट को आने में और वो इम्पैक्ट कितना नेसेसरी है, कितना यूज़फुल है और कितना रियलिस्टिक है, उसको समझने में हमें 2 से 3 साल और कई बार तो 5 साल का समय भी लग जाता है. तो येस, गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड NEP एंड ऑल बोर्ड्स हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग NEP. तो इसके ग्रेजुअल हमको जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने शुरू हुए हैं एंड वन ऑफ द मेजर स्टेप्स इज द टू बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस ईयर ओनली. तो अब हमारे बच्चे इस साल पहली बार 2 बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे. यस, शुरू में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं होती हैं, अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं होती, कई बार स्कूल्स की नहीं होती है, पेरेंट्स की नहीं होती है, बच्चों की नहीं होती है, बट वो धीरे धीरे सिस्टम इस्टेब्लिश होना शुरू होते हैं और फिर हमको और आने वाले 2 से 3 सालों में ये समझ में आएगा कि ये सारे इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पे और हमारा जो अल्टीमेटली स्टूडेंट है जिसके लिए सारा कवायद उस बच्चे के लिए ये उस पे इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है. तो लेट अस वेट एंड वॉच. NEP बहुत ही थॉटफुल डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और बहुत एक बड़ी टीम लगी है इसको डिज़ाइन करने में. हम इसको आउटराइटली नेगेटिव नहीं बोल सकते, इसके लिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए. रिफॉर्म्स बनाए गए हैं, कुछ सोच के बनाए गए हैं, कुछ अच्छे के लिए बनाए गए हैं. लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ गुड चेंज इन द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कंट्री. डेफिनेटली सर, यानी आगे आने वाले 4 से 5 सालों में हम इसका प्रॉपर इम्पैक्ट देख पाएंगे. सर आपने 2 बोर्ड एग्जाम्स की बात करी, तो मैं जानना चाहूँगी कि 2026 में ही एग्जाम्स होने वाले हैं.
आपके स्कूल ने किस तरीके की प्रिपरेशन की है कि ना कोई कन्फ्यूजन रहे, प्रॉपरली सारी चीज़ें होती रहें और बच्चों को भी बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि उनको क्या करना है? देखिए, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम, इट इज़ अ मेजर स्टेप विच बोर्ड हैज़ टेकन। सबसे पहले तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। बच्चों ने बहुत सारे दिमाग में अपने सपोजिशन बना ली थी, सिचुएशंस क्रिएट कर ली थी कि अगर हमने पहला बोर्ड एग्ज़ाम छोड़ दिया तो हम दूसरा ले लेंगे। तो उनको ये समझाना, पेरेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि इसका करेक्ट वर्जन क्या है। सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो एक ऑप्शनल अटेम्प्ट है, वो एक कंपार्टमेंट अटेम्प्ट है। वो ये नहीं है कि आपने पूरा का पूरा बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट वाला छोड़ दिया और सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले एक सही इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, वो पेरेंट्स तक भी पहुँचे, वो बच्चों तक भी पहुँचे, वो टीचर्स तक भी पहुँचे और सब लोग इस बात को याद रखें। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। तो हमने अपने स्कूल में भी इस इन्फॉर्मेशन को बच्चों तक कम्युनिकेट कर दिया है। इसका पर्पस भी बताया गया। इसका पर्पस ये था ताकि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके और अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा है अपने स्कोर में तो उसको इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी उसके पास हो। तो इसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। इसको इसलिए नहीं लेना चाहिए कि हमने एग्ज़ाम छोड़ दिया तो हम सेकेंड एग्जाम अटेम्प्ट दे देंगे। इसको इस स्पिरिट में नहीं लेना चाहिए। तो उस जिस सोच से बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट किया है वो सोच कंटिन्यू रहे। ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। तो फॉर्चुनेटली हमने अपने स्कूल में, मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल में, वी हैव कम्युनिकेटेड वेल टू द स्टाफ, टू द टीचर्स, टू द पेरेंट्स, टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड लेट्स एक्सपेक्ट कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा। हम सहोदय के माध्यम से भी सारे स्कूल्स को ये बात कई बार मल्टीपल टाइम्स कम्युनिकेट कर चुके हैं। होपफुली हम ये मान के चल रहे हैं कि सबको सारी बातें क्लियर हैं। मीडिया के माध्यम से भी हमने ये बात पब्लिक तक पहुंचाई है, पेरेंट्स तक पहुंचाई है। तो लेट्स सी कि कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में ना रह जाए। बिल्कुल, यानी आप बिल्कुल तरीके से प्रिपेयर बिल्कुल तरीके से प्रिपेयर एग्जाम के लिए। डेफिनेटली सर, लास्ट सवाल मेरा बस आपसे ये है कि ये जो इवेंट आज आपने देखा, इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, ऐसा आपको क्यों ज़रूरी लगता है? मैडम, जैसे आज अभी ये एक हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, अभी ये इंटरेक्शन अगर हम ना करें, शुरू हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है आप क्वेश्चन पूछने में गलती करें, मगर हम जब एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 4 बार, मोर थिंग्स वी डू, मोर मिस्टेक्स वी कमिट, मोर करेक्शंस हैपन, एंड मोर करेक्शन व्हेन इट हैपन्स, हम बेटर हो जाते हैं। ये फॉर्मूला मेरे ऊपर लागू है, आपके ऊपर लागू है, हम सबके ऊपर लागू है। तो ये जो एग्जीबिशन होती हैं, ये थ्योरेटिकल चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में करने का एक प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करता है। दैट टू, आज की एग्जीबिशन तो एक लार्ज स्केल, इसरो इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो गई, तो बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। ऐसे ही तो बच्चे कुछ बेहतर कर पाते हैं। क्या पता कल इन्हीं बच्चों में से कोई कुछ ऐसा शानदार काम कर जाए जिस पे हम ये कहें, फ़ख्र करें कि हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा निकल गया। वो आपके स्कूल का हो सकता है, मेरे स्कूल का हो सकता है मैं ही हो जाऊं। हमारे टीचर्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है एक्सपोजर का, हमारे प्रिंसिपल्स को, हम आज जितने लोग यहाँ पर एज विजिटर्स आए, एज ऑडियंस आए, उन्होंने भी तो एक बड़े प्लेटफॉर्म को विटनेस किया। तो ये सब टेक अवेज सबके पास अपने अपने, पेरेंट्स का अपना टेक अवे होगा, बच्चे का अपना टेक अवे होगा, प्रिंसिपल का अपना टेक अवे होगा, मैनेजमेंट मेंबर का अपना टेक अवे होगा। तो क्या होगा, एक अच्छी चीज़ जब हुई तो वो पूरी सोसाइटी में धीरे धीरे स्प्रेड होती है और क्या होता है, सब लोग एक साथ बढ़ जाते हैं। केवल मैं नहीं बढ़ूंगा, आप भी बढ़ेंगे, वो भी बढ़ेंगे, वो भी बढ़ेंगे और सोसाइटी अपलिफ्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से इस तरह की एग्जीबिशन केवल एक ऑब्जेक्टिव को फेच नहीं करती है, इट फेचेस मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और ये पेरेंट्स के लिए भी है कि लेट स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट, लेट देम डू एंड लेट देम मेक मिस्टेक्स। मैं तो पेरेंट्स को हमेशा ये कहना चाहूँगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आप बच्चे को ब्रेड खरीदने के लिए पैसा दीजिए। हो सकता है 12 रुपए की ब्रेड आए, वो 15 दे के आ जाए, गलती करेगा, करने दीजिए। हम भी गलती करके सीखे हैं, आप भी गलती करके सीखें, बच्चे को भी गलती करने दीजिए। वो अपने आप सीख के परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। बिल्कुल, बस मौके ज़रूर दीजिए। बिल्कुल। नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम विद द एडू बुलेटिन। थैंक यू सर। थैंक यू साक्षी। Thank you for joining us for this enlightening discussion. We hope you found it as insightful and inspiring as we did. Save the number 721707010 and send "Hi" on WhatsApp to receive daily educational news updates and inspiring interviews from the Edu Bulletin.